Okay. Abdul Hafiz का क्वेश्चन है, एज अ साइंस स्टूडेंट I know for the fact that theory of evolution is not just a theory, it is backed by some scientific facts. Look at the mutation of virus and bacteria. Look at the fossils of human-like species, Homo sapiens, etc. All these theoretical concepts has provided a framework for scientists to discover more. Rejecting evolution completely is a mere ignorance of scientific knowledge and what this theory means. I am not the only one saying that. Please go check what Dr. Srar says. Go check what Ibn Khaldun said 600 years ago, before even Darwin came up with this idea. While Darwin's idea isn't completely correct, but it has provided a basis for understanding evolution, and now scientists have discovered that there are parallel creation of species. I personally do not see any clash between evolution and religion. Phenomena of evolving from a single source does not mean that God did not create them for the first time and let them evolve. So your take on theory of evolution? There's so many angles and so many aspects of your question. Where to begin? First and foremost, let me just talk to you about where your premise is. The use of the word fact is such a casual throw-off of this concept. It's not a fact at any level. Of the whole theory of evolution does not really have facts. Fossils are not facts of evolution. Fossils are indicators that the theory of evolution can be determined as one of the many causes, or the pieces of the puzzle. One of, could be and could be not altogether. रही बात डॉक्टर इसरार की और इब्न खुल्दून की, और ये तो दो नाम आपने बताए, मेरे पास तो 50 और नाम है, और इब्न खुल्दून से ही पहले के नाम है। डॉक्टर इसरार ने यहाँ तक कहा था कि जानवरों में एवोल्यूशन हो सकती है, और हुई भी है, इंसानों में नहीं हुई। दैट वाज अ वेरी casually wrong statement to give, because I'm a psychologist. I'm talking about, and this is what my purpose is, कि मुस्लिम उम्मा की जो साइकोलॉजी है ना, वो उस लेवल पे इंटैक्ट रखें साइकोलॉजी, जो कि किसी भी सहाबी की साइकोलॉजी थी रिगार्डिंग हाउ टू टेक द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशंस। सो मैं आपके उस प्रेमिस को पहले एड्रेस कर दूं कि डू वी रियली सी एवोल्यूशन, और जिस तरीके से उन्होंने रॉक फॉर्मेशन के अंदर से निकाल लिए हैं सारे के सारे पैरल प्रूफ्स, और पूरी जर्नी निकाली है उन्होंने सिंगल सेल से लेके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन की, और अभी भी निकाल रहे हैं, टू द प्राइमेट्स एंड अदर फाइलम्स एज वेल, नॉट जस्ट प्राइमेट्स, जिसमें भी उन्होंने ये प्रेजेंट किया है, एंड नॉट जस्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं। Understand that at a level of a single cell or a virus or our own cellular structure, we know for a fact that the predating of these sort of, see, I don't want to go in detail of science because this is a Q&A session, मगर मैं अगर आपकी इस थ्योरी को for example fact भी मान लूँ ना, तो at a certain level मुझे एक threshold define करना पड़ेगा। for example कि मैं, अल्लाह ताला ने इंसान जो है वो कौन के थ्रू इंसान ही बनाया था, मगर मेरे अंदर होने वाले जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं वो इवॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दिस इज़ समथिंग विच आई वांट टू बिलीव, इवन दो इसके लिए भी कोई फैक्चुअल एम्पिरिकल एंड एनी सॉर्ट ऑफ अ फैक्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मुझे। रही बात कि मैं किस लेवल पे ऊपर आके मानूं कि एवोल्यूशन अभी भी चल रही है, और चूँकि एज अ सेलुलर लेवल कुछ ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई हुए हैं, सो उसको फिर भी मैं एक सब स्ट्रक्चर के अंदर ही रखूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सट्रैपोलेट इट टू अ लेवल के एक सेल के अंदर से घोड़े भी निकले हैं, जिराफ भी निकले हैं, छिपकली भी निकली है, चूहा भी निकला है, और इंसान भी निकला है। टेक्निकली दिस इज़ द एक्चुअल premise of, if I actually go that way, you'll have to understand कि पत्थर, इंसान, any and everything. Why? I'll tell you why
as a human, as a Muslim, we cannot believe in this. And there's a factual, observable evidence I'm going to give you, and that is the concept of ruh. Jo ruh, the soul, that is a concept through which you better understand that evolution technically cannot be possible. Now, I'm talking about as a whole. Evolution is not a concept that should set a psychology of a Muslim. Because किसी भी और जानवर के साथ, किसी भी और जो स्पीशी है, इवन एट प्लांट्स लेवल, क्योंकि एवोल्यूशन के लिहाज से तो मुझे वो ये भी मानना पड़ेगा कि एक दरख्त और एक इंसान भी टेक्निकली एक ही रूट से आए हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ सो मच टू डिस्कस and so much evidence which is against this very psychology of evolution that मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एटलीस्ट 2-2.5 घंटे चाहिए just to keep plotting in front of you all of the evidences. बहरहाल मैं छोटा करके बताता हूँ कि जो रूह का कॉन्सेप्ट है उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि एवोल्यूशन नहीं हो सकती. रूह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में अरवाह के लफ्ज़ के साथ लिटरली और द हदीस में जर्नी ऑफ द रूह आफ्टर डेथ के साथ बता दिया कि वो एक ही चीज़ है जो साइक्लिक प्रोसेस में दुनिया में आती है और वापस चल जाती है. मत चूँकि अरवाह का कॉन्सेप्ट पहले से हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लेवल के ऊपर एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के जिस्म नहीं बन रहा था. रूह जो है वो उसी जिस्म के लिए, जो जिस्म है वो उसी रूह के लिए वंस एंड फॉर ऑल डिसीजन हो चुका हुआ उसका. और हदीस ये है कि जानवरों में भी रूह होती है मगर जान नहीं, जान होती है मगर रूह जो स्पिरिट नहीं होता, नफ्स, रूह और जो जान का कॉन्सेप्ट है उनमें से दे हैव अ लोअर मैट्रिक्स. दे डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ द ट्राइड जो कि इंसानों में होते हैं, इसलिए उनसे वो वाले सवाल नहीं होने और उस तरह का मामला नहीं होना उनके साथ. सो इसका मतलब यह है कि उनकी भी क्रिएशन इन दिस वे वाज क्रिएटेड इन अ टोटली डिफरेंट टेम्पलेट, जो कि पहले से डिटर्मिन्ड टेम्पलेट है. इंसान की भी एक ख़ास टेम्पलेट है, उसको रूह कहते हैं. और उस टेम्पलेट की डेफिनेशन, निशानियाँ जन्नत के इंसानों की भी जिस्मानी हालात से हमें पता चल चुकी हुई. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू आफ्टर लाइफ बिकॉज उस वक्त तो कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, उधर एवोल्यूशन भी हो सकती है फॉर ऑल आई केयर. मगर इधर बिफोर दिस एडवेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री सुनी है और अभी एक और स्कॉलर ने भी अपना कोई एक थीसिस पेश कर दिया है कि आदम भी एक ह्यूमनॉइड के एक पूरे के पूरे स्पेसिमेंस को टेस्ट करने के बाद जो फाइनल ह्यूमनॉइड क्रिएट हो गया था उसको अल्लाह ने आदम कर दिया. ये अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी है. आई डोंट नेम नेम्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट अगेंस्ट द वेरी फैक्ट कि पीपल शुड थिंक अबाउट एवोल्यूशन, बट आई एम against the fact that people should settle their psychology on the fact कि human evolution के through एक ऐसे creation हुई है, उससे इतना बड़ा psychological flood आ जाता है जो कि it will create the biggest door towards pondering of questions. सूरह काफ की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कोई विटनेस ही नहीं, एक भी बंदे को विटनेस नहीं रखा जब मैंने आदम को बनाया. I did not leave any witnesses. This was not something which is upon you to know कि मैंने आदम को कैसे बनाया. So understand this. अगर ह्यूमनॉइड्स थे और किसी ना किसी लेवल पे थे तो आदम की क्रिएशन के बाद कोई ना कोई एक टेस्टिमनी होनी चाहिए थी हमारे पास. So understand the very concept of ruh first, and then you'll understand why I am not letting anyone open this door, because it's going to suppress the psychology of the current Muslims. और एक इस लेवल की लड़ाई चल रही है जहनी सतह पर दुनिया में दो इंसानों की कि एक इंसान की साइकोलॉजी इतनी सप्रेस हो चुकी हुई है कि उसके ऊपर इस्लाम एक बोझ की तरह गिरेगा, क्योंकि वो बोझ उसको गैब को डिटरमिन करने में किसी भी लेवल के ऊपर दीवारें कायम कर देगा कि गैब का लिए कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैं दीन को नहीं मानता. इस लेवल तक चली जाएगी बात. मैंने बहुत छोटा करके एकदम गैब की बात कर दी बिकॉज मैंने बीच की सारी स्टेजेस इस वक्त के लिए श्रिंक कर दी हैं. सो द juxtaposition of these two different psychologies is absolutely not possible. That's why I just don't want any Muslim to start even pondering over the fact that there is a possibility of evolution, especially at a primate level जहाँ से आदम तक बात आ चुकी थी. बिकॉज फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ
ह्यूमन पर्पस है ना, ह्यूमन पर्पस, वो फ्लैट ऑन इज फेस गिर जाता है, फ्लैट ऑन इज फेस, बिकॉज इफ देयर इज अ स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर एंड ऑल ऑफ अ सडन बीच में कहीं पे हिदायत और मैसेज की बात आई है, तो it will lead to a totally grey ending. And again, this is something which I don't want to go into detail. मैं ज़रूर आपके इस क्वेश्चन की वजह से सेशन करूँगा इसके ऊपर इंशाल्लाह, ताकि मैं पूरी डिटेल में बता सकूँ why I'm so against Muslims pondering over evolution, because मैं आपको फिर जाते वक्त बता दूँ, it is a redundant discussion, even if there is evolution. The day of judgment is just upon ये last leg of the human race चल रही है इस वक्त. last leg का मतलब है कि बस अब क़यामत आई, कि ऐसी क़यामत की निशानियाँ आ चुकी हुई हैं. So we technically don't even have a time to understand or even think of trying to understand कि हम शुरू कहाँ से हुए थे. It's such a useless discussion when it comes down to the purpose of us human beings on this planet right now. So we will do a session. I appreciate the question. I just don't appreciate the movement through which the movement means this global thought movement कि जिसके ऊपर evolution पे टाइम ज़ाया किया जा रहा है.